Hello everyone. Today we are going to study a very important chapter that is called electrostatics. Electro can be associated to electron which carry charge, and statics means at rest. So in this chapter we study about charge when it is at rest. Actually, there is another branch of physics, or another topic in physics that is called electrodynamics. Dynamics means motion. In this chapter, we study about charge when it is moving. What happens that when charge is at rest, it behaves in one particular way, and when it is in motion, it behaves in a different way. So we study both these behaviors separately in these two chapters. Currently, our focus will be to study electrostats. Before we start vigorous study of electrostats, we'll see some simple points about charge. Some points about charge. You must be knowing many of these points as they are simple. The first point is that charges are of two types, positive and negative. If we have two positive charges, they repel each other. If we have two negative charges, they repel each other. But if we have one positive and one negative charge, then they attract each other. The second point is only electrons and protons have charge. We know that electron has negative charge and proton has positive charge. We'll assume in our study that only these two particles can carry charge. Though there are some other particles which have been recently found to carry charge, but we will not be considering this in our study. And we already know that electron and proton both carry charge of magnitude 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. The third point is that charge is conserved. Charge is conserved. We know that protons and electrons cannot be destroyed or created. So it will mean that a total number of protons and electrons in any system will always be constant. And so the charge also must be constant. Then charge is quantized. Let's see what it means. Say I have one proton. So it will have 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. If I have two proton, it will have 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb. If I have three protons, it will have 4.8 into 10 to the power minus 19 coulomb. Now please note that it is not possible to get a charge lesser than this number, because then we will need fractional number of protons and it is not possible to divide proton. Similarly, if we want a charge between these two numbers, it will not be possible, because again we will need a number of protons between 1 and 2, which is not possible. Similarly, a charge between these two numbers is not possible. So we can say that only those values of charge is possible which are integral multiple of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Only integral multiple of this charge is possible. When we say charge is quantized, this is what we mean. The next point is, sometimes people get confused between these two words. These words are chargeless and neutral. Say we have two boxes. One has two neutrons, another has one negative electron and one positive proton.
we can say this box is chargeless and this is neutral as well. We can say that this box is neutral, but this is actually not chargeless because fundamentally charges are there in this box, but they add up to 0, so we are saying it neutral. Now, having studied about charge, we will see charging of a body. तो इन जनरल हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होते हैं, कोई भी हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल अ पेन, तो वो जो है वो न्यूट्रल होगा, ठीक है, वो चार्जलेस नहीं होगा, क्योंकि ये इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे और वो जो एटम हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे, तो चार्ज तो है बट वो टोटल चार्ज 0 होगा, इसलिए न्यूट्रल होगा. अब द पॉइंट इज, अगर मुझे इसको चार्ज करना है और मुझे इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है या नेगेटिवली चार्ज करना है, तो हम इसको कैसे चार्ज करेंगे वही हम यहाँ पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें समझना चाहिए वो ये है कि अगर हमें इसको निगेटिवली चार्ज करना है तो क्या मुझे इसको प्रोटॉन्स देने पड़ेंगे? नो. तो उस टाइम में क्या करूंगा, इसे इलेक्ट्रॉन्स निकाल लूंगा. इलेक्ट्रॉन्स निकालने से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा हो जाएंगे, तो इस पे नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा. जनरली प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं उनको इनमोबाइल माना जाता है, तो इसलिए प्रोटॉन्स का ट्रांसफर इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. तो अगर हमें पॉजिटिवली चार्ज करना हो या निगेटिवली चार्ज करना हो, दोनों ही केस में जो एक्सचेंज होगा वो इलेक्ट्रॉन्स का होगा. निगेटिव चार्ज करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन देंगे और पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे. सो दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. नाउ अब ये इलेक्ट्रॉन हम कैसे देंगे और कैसे निकालेंगे, दैट इज ऑल्सो नॉट दैट सिंपल. ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और हमने पेन के अंदर डाल दिया या पेन के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स पकड़ के निकाल दिए. तो उसके लिए एक प्रॉपर मेथड होता है. we'll see what is that method, but before that we'll see what are conductors and what are insulators. ये शायद आपको पता भी हो, but still we'll see what is the basic difference between these two. उसके हेल्प से हम समझ पाएंगे कि उनको चार्ज कैसे किया जाता है. तो सपोज करो कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे. किसी भी एक एटम को पे हम कंसंट्रेट करें तो सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होगा और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स, एक या बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में घूम रहे होंगे. और ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं एटम में, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है. इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में ही घूमता रहता है. अब क्या होता है कि इसमें यहाँ पे जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स में ये अट्रैक्शन फोर्स बहुत वीक होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होके आराम से घूम सकता है, वो ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है. लेकिन जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर में ये अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता. तो हम ऐसा बोलते हैं कि कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है और इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड है. ये जो डिफरेंस है कंडक्टर और इंसुलेटर में, ये उनके बीच का सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है, जिसके कारण उनके बीच में बाकी डिफरेंसेस भी आते हैं. अब इस डिफरेंस के कारण क्या होता है, इन दोनों को चार्ज करने का तरीका अलग हो जाता है. मतलब एक कंडक्टर ऑब्जेक्ट है तो उसको अलग तरीके से चार्ज करना पड़ता है, और एक इंसुलेटर ऑब्जेक्ट है तो उसको अलग तरीके से चार्ज करना पड़ता है. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी. तो लेट्स राइट डाउन charging of conductors. Charging of conductors. देखो, कंडक्टर्स को चार्ज करने के दो तरीके हम यहां पे पढ़ेंगे. जो पहला तरीका है वो बहुत सिंपल है, दैट इज कॉल्ड बाय कॉन्टैक्ट. इसमें हम क्या करते हैं कि सपोज करो कि हमें एक स्फीयर को चार्ज करना है, से आयरन बॉल है, तो दिस इज अ कंडक्टर. तो इसको चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक दूसरा रॉड लेके आएंगे या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेके आएंगे जिस पे ऑलरेडी चार्ज हो. तो सपोज करो
कि हमें इस स्फीयर को निगेटिवली चार्ज करना है, तो हम एक ऐसा रॉड लेके आएंगे जिस पे निगेटिव चार्ज होगा। अब इस रॉड पे निगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, प्रोटॉन्स कम है। अब इस स्फीयर को चार्ज करने के लिए हम इन दोनों को टच कर देंगे। जब हम टच करेंगे तो व्हाट विल हैपन? इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है लेकिन इसमें ज्यादा नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर की तरफ फ्लो करेंगे फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी। तो इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे एक्स्ट्रा, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल सा तरीका है। हाँ, इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा? थिंक वो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ चुके हैं। वैसे ही अगर मुझे इस स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज करना होता, तो अब मैं क्या करता? अब मैं एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आता। अब ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज है, इसका क्या मतलब है? कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम है और प्रोटॉन्स ज्यादा है, इसलिए नेट चार्ज पॉजिटिव। अब हम इन दोनों को टच कराते, अब क्या होता? अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम है तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो करने लगेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स में फ्लो कर जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, तो इसमें भी कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इस तरीके से ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो दिस इज सिंपल वे ऑफ चार्जिंग अ कंडक्टर। जो सेकेंड तरीका होता है, वो थोड़ा ज्यादा एडवांस्ड है, उसको बोलते हैं बाय इंडक्शन। इसमें हम क्या करते हैं कि सपोज करो मुझे इसी आयरन बॉल को चार्ज करना है, तो अब जो निगेटिव रॉड मैं अगर लेके आऊंगा इसको चार्ज करने के लिए, उसको मैं टच नहीं करूंगा, कोई कांटेक्ट नहीं होगा, नो कांटेक्ट। तो इसको मैं टच नहीं करूंगा, इसको मैं दूरी रखूंगा। अब दूर रखने से क्या होगा कि इस आयरन बॉल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है फ्री, जो कि वो मूव कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने यहां पे देखा। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस नेगेटिव चार्ज से रिपेल होंगे और वो दूर चले जाएंगे, तो यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से रिपेल होकर इधर आ गए तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। सो देखा जाए तो इन सम सेंस दिस आयरन बॉल हैज गॉट चार्ज, क्योंकि इस पार्ट में नेगेटिव चार्ज है और इस पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज है। बट दिस इज नॉट वेरी यूजफुल, क्योंकि अगर हम इस रॉड को दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज वापस से मिक्स हो जाएंगे और ये वापस से न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये जो चार्जिंग हुई थी वो सिर्फ टेम्पररी थी, तो ये उतना यूजफुल नहीं है। तो इसको प्रॉपर तरीके से चार्ज करने के लिए, परमानेंटली चार्ज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अब एक नहीं बल्कि दो आयरन बॉल्स लेंगे और उन दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे, ऐसे 2 आयरन बॉल्स। हम वापस से उस नेगेटिवली चार्ज रॉड को पास लेके आएंगे। अब क्या होगा, इन दोनों के जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इससे रिपेल होके इस स्फीयर में चले जाएंगे थोड़े से, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ व्हाट विल डू कि हम इसको दूर ले जाएंगे और इस स्फीयर को भी दूर ले जाएंगे साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे इस रॉड को भी दूर ले जाएंगे और इस स्फीयर को भी। तब क्या होगा, मेरे पास यही स्फीयर बचेगा और इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये इस नेगेटिव चार्ज के साथ मिक्स नहीं हो सकता, तो आई विल हैव दिस आयरन बॉल एज पॉजिटिवली चार्ज। एट द सेम टाइम ये जो आयरन बॉल दूर ले जाया गया होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज आयरन बॉल हो गया और एक नेगेटिवली चार्ज आयरन बॉल हो गया। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें हम कांटेक्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि बाय कांटेक्ट वाले में हम जिस रॉड से चार्ज करते हैं उसको टच करते हैं, लेकिन इसमें हम उस रॉड को टच नहीं करते। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू मेथड्स। अब द पॉइंट इज कि are these methods applicable for insulators? This is a small question for us. तो हमने पहले ही हेडिंग लिखी थी चार्जिंग बाय कंडक्टर्स, तो इसका क्या मतलब है कि क्या ये मेथड्स इंसुलेटर के एप्लीकेबल नहीं है? सो द आंसर इज नॉट एप्लीकेबल। तो भाई क्यों एप्लीकेबल नहीं है? अब ये मेथड इसलिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इसमें हम रॉड को टच कराते हैं, तो
तो इसमें से रॉड में से चार्ज फ्लो के इस आयरन बॉल में आता है, तो चार्ज का फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो फ्लो जो है वो सिर्फ कंडक्टर्स में हो सकता है, इंसुलेटर होगा अगर यहां पे तो फ्लो नहीं होगा, तो ये मेथड काम नहीं करेगा। वैसे यहां पर भी अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि इस बॉल से इस बॉल तक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ है, तो अगर ये इंसुलेटर होते तो ये फ्लो जो है वो नहीं हो पाता, इसलिए ये मेथड भी जो है वो सिर्फ इंसुलेटर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। आई मीन टू से कि ये मेथड सिर्फ कंडक्टर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। तो ऑब्वियसली नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इंसुलेटर्स को कैसे चार्ज करेंगे। तो इंसुलेटर को चार्ज करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं दैट इज लाइक दिस। फर्स्टली वील राइट चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर, उसके लिए जो मेथड यूज करते हैं हम दैट इज कॉल्ड बाय रबिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम दो इंसुलेटर ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, दो इंसुलेटर ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, दोनों इंसुलेटर हैं। अब इन दोनों को आपस में हम रब करते हैं, यहां पे आपस में रब करेंगे। रब करने पे क्या होता है, इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जंप होके इधर आ जाते हैं, इसके सरफेस के कुछ इलेक्ट्रॉन्स रब करने पे जंप होके इधर आते हैं। तो ये जो है वो निगेटिवली चार्ज हो गया क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, और ये जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। सो दिस इज अ सिंपल मेथड बाय रबिंग। अब इसमें ये सवाल पैदा उठता है कि इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें क्यों आया, इसमें से इसमें क्यों नहीं गया। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इन दोनों में से किसी एक की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिव। तो यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन है अपने लिए कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स सेम मटेरियल के लिए, सेम मटेरियल, तो क्या इनको रब करने से ये दोनों चार्ज हो जाएंगे? नहीं होंगे। नो। वाई? क्योंकि ये दोनों सेम मटेरियल के हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी? सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम है तो कोई किसी से इलेक्ट्रॉन छीन नहीं पाएगा और कोई भी चार्जिंग नहीं हो पाएगी। So these are the methods for charging